Hello guys, welcome back to my channel. Or in today's class, we are going to cover next questions of Java. That is, these questions are related to collection framework. This is our fourth section. Previously, we had covered three sections. That is, first basic Java questions, then advanced Java questions, and then core Java questions. Now, our fourth part is, or fourth lecture, you can say, is collection framework questions. In this part, we are going to discuss about Java collections. Okay. The first thing to know about collection framework is what is collection framework in Java. So the collection framework is Java the collection framework is a set of class and interfaces in a Java to store and manipulate groups of objects. It includes list, queue, map. Okay, as you can see, you have heard of names like array list. Okay, array list, then hash map, then stack, set. You have heard, and you, matlab, most of us has used this collection framework in our coding questions. Okay, so these are only known as collection framework because they are the group of, or you can say set of classes and interface in the Java which stores and manipulate the group of objects. Okay, like array list. In array list we stores the objects like array. In array, the size of array cannot be extended. So if the size of array is 4, for example, if I have an array of size 4, or you can say array of size 3, so I can only store 3 elements in this. For storing the fourth element, I have to make another array. But in case of array list, you can append the more number of entities, or you can say characters or numbers in an array. The size of array list is versatile, which means it can increase according to our need. Okay, so this was basically our array, matlab collection framework. You can see how we declare this collection framework list. We declare list using this list, integer list, new array list. Set with stored strings, new hash set, map, hash map. See, in map you stores, like we have created a hash map here. तो map में हम कैसे store करते हैं? Key and value की form में. This is my key, again this is my value. So key will always be a integer, okay, and value, or you can say key will be string and this will be a value according to our need. So therefore यहाँ पे हम पहले define the data type, then you allot the name जिस नाम से आपको बनाना है, and then new hash map, new hash set, new array list, new set. Okay, so these are the declaration कि हम कैसे declare करते हैं. Now again, what is the difference between list, set and map? See, list, set and map. List allow duplicates, set do not allow duplicates, and map में तो key value pair के form में store होता है. List में duplicates allow होते हैं, set में no duplicates are allowed. ऑर्डर की बात की जाए तो लिस्ट मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर. सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता, मैप में कीज में कोई ऑर्डर नहीं होता, वैल्यूज तो फॉलो नहीं करता. ओके, मतलब कि ओनली लिस्ट फॉलोज द इंसर्शन ऑर्डर. लिस्ट के एग्जांपल हो गए एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट. सेट का हैश सेट, ट्री सेट. मैप का हैश मैप, ट्री मैप. ओके, इनको भी कैसे डिक्लेयर करते हैं? अगेन दिस इज सेम एज एन अबव. ओके, so our next question is, what is the difference between array list and linked list? To see, array list is dynamic. As I said earlier कि dynamic मतलब कि हम उसमें ऐड कर सकते हैं. मतलब अगर मेरे पास 4 साइज का है लेकिन मुझे फिफ्थ एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं array list यूज़ करूँगी क्योंकि वो डायनेमिक है उसका साइज. ठीक है, हम उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट लिंक लिस्ट, इट यूजेस अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट. array list की एक्सेस टाइम हमको फास्टर है एज कम्पेयर टू लिंक लिस्ट. ठीक है, अगर हमको रैंडम एक्सेस करना है तो वी यूज्ड एलरिस्ट बिकॉज इट्स एक्सेस टाइम इज फास्टर. दैट इज बिग ऑफ एन, और इसका बिग ऑफ एन, बिग ऑफ वन एंड बिग ऑफ एन. इंसर्शन डिलीशन एरे लिस्ट में स्लो होता है, लिंक लिस्ट में फास्टर होता है. ठीक है, क्योंकि इसमें जस्ट नोड्स होती है. तो अगर आपको इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो जस्ट आपको पॉइंटर चेंज करना पड़ता है. रेट से पॉइंटर चेंज करना पड़ता है. एरे लिस्ट में पूरा आइटरेट करके एंड सो ऑन, इसलिए इसमें स्लो प्रोसेस होती है, इसमें फास्ट होती है. लिंक लिस्ट को भी हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, इफ़ हमको लिंक लिस्ट बनाना है जिसमें इंटीजर स्टोर हो रहा है, तो उसका डेटा टाइप, उसका नेम और न्यू लिंक लिस्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत सारे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. सी, हैश मैप में क्या होता है? डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू. ओके, हैश मैप में.
और इसमें जो है सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। ये फास्टर क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है। ओके, टॉकिंग अबाउट हैश टेबल सिंक्रोनाइज्ड होता है। ठीक है, ये स्टोर करता है यूनिक एलिमेंट्स। हैश टेबल दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर है विच इज यूज्ड फॉर हैशिंग टू क्विकली स्टोर एंड रिट्राइव द एलिमेंट, बट द की डिफरेंस इज दैट हैश मैप स्टोर्स की वैल्यू पेयर, वाइल हैश सेट जो है वो यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है। वेट, ये हैश मैप है और ये हैश सेट है। इट इट स्टोर की वैल्यू पेयर। ओके, की वैल्यू पेयर, और ये यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है। यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है। हैश में हम अलाउ डुप्लीकेट्स, यहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउ होता है। हैश सेट में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। हैश मैप कैन इंटरनली यूज्ड एन एरे ऑफ एंट्री ऑब्जेक्ट्स, वाइल हैश सेट जो है वो इंटरनली एक हैश मैप ही यूज करता है। ये इंटरनली एक एरे यूज कर सकता है, ये इंटरनली एक हैश मैप ही यूज करता सकता है। ठीक है, या दिस आर द सम डिफरेंस। ये वही लिखा है कि अलाउ वन नल की, मैनी नल की, इसमें कोई नल की अलाउ नहीं होती है। डिक्लेरेशन इसका ऐसा होता है। अगेन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइटरेटर एंड लिस्ट आइटरेटर? आइटरेटर ट्रेवर्स इन वन डायरेक्शन ओनली और लिस्ट आइटरेटर बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। आइटरेटर को अपन कहाँ यूज कर सकते हैं? एरे में। लिस्ट आइटरेटर को कहाँ यूज कर सकते हैं? लिंक लिस्ट वगैरह में, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। ये सारे कलेक्शन फ्रेम के लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ लिस्ट के लिए है, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट। ये इसमें ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं एलिमेंट, नहीं आइटरेटर में, इसमें कर सकते हैं लिस्ट आइटरेटर में। यहाँ पे बताया है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, और एक आइटरेटर बनाया है। ये आइटरेटर्स में आइटरेट कर रहा है मेरी लिस्ट पे, हैश नेक्स्ट करके चेक कर रहा है। और एक मैंने वही एक लिस्ट आइटरेटर बनाया है सेम। ओके, तो जो ये लिस्ट आइटरेटर है, ये क्या कर रहा है? इसको भी मैंने वैसे ही डिक्लेयर किया है जैसे मैंने अपने आइटरेटर को डिक्लेयर किया है। ओनली द डिफरेंस इज कि ये अब मेरे कोई एलिमेंट्स को ऐड करना हो, मॉडिफाई करना हो, तो मैं तब लिस्ट आइटरेटर यूज करूंगी, आइटरेटर यूज नहीं करूंगी। ओके, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन इन जावा? तो now what is garbage collection? Garbage collection in Java is the process of automatically reclaiming memory by removing unused object. It is handled by JVM. See, अगर मेरे पास कोई कोड लिखा है, कोई कोड लिखा है और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का मेरा काम हो गया है, तो गार्बेज कलेक्टर आके इस ऑब्जेक्ट को बाहर फेंक देगा, मतलब कि इसको कलेक्ट कर लेगा, सच दैट कि कोई मेमोरी वेस्ट ना हो। ठीक है, और ये काम कौन करता है? ये काम करता है जेवीएम। वेट अ मिनट, गार्बेज कलेक्शन, हाँ, और ये काम कौन करता है? गार्बेज कलेक्शन। कैसे करता है? सी, यहाँ पे मैंने एक मेन मेथड एक एग्जांपल लिया, एक मेन मेथड बनाई है विच इज द एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। हियर वी हैव क्रिएटेड इंस्टेंट ऑफ गार्बेज एग्जांपल इज क्रिएटेड एंड ओके एंड इज असाइंड टू द वेरिएबल ऑब्जेक्ट। एज यू कैन सी, एक इंस्टेंट बनाया है गार्बेज एग्जांपल का, ओबीजे, ठीक है, एंड असाइन टू द वेरिएबल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया है। अगेन यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट डॉट नल है, इसमें क्या हो रहा है? ये ये जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, इसको भी मैंने इनिशियली सेट कर दिया नल पे, सो डैट कि द प्रीवियसली क्रिएटेड जो गार्बेज एग्जांपल ऑब्जेक्ट जो भी मेरा बना होगा ऑब्जेक्ट, वो एलिजिबल हो गार्बेज कलेक्शन के लिए, अभी इसलिए इसको नल कर दिया है एज देयर आर नो रिमेनिंग रेफरेंसेस फॉर इट। ओके, तो दिस लाइन क्यों नल है? आई होप सो यू गॉट इट, कि मेरा जो प्रीवियसली क्रिएटेड इंस्टेंट है गार्बेज एग्जांपल का, वो गार्बेज कलेक्ट कर सके इसलिए। नाउ हियर सिस्टम जो डीसी क्या कर रहा है, ये लाइन रिक्वेस्ट कर रहा है मेरे जावा वर्चुअल मशीन को टू परफॉर्म द गार्बेज कलेक्शन। ये गारंटी नहीं, मतलब इससे ये नहीं होगा कि गार्बेज कलेक्ट ही हो गया, बट इट विल ट्राई टू कलेक्ट द गार्बेज। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मेमोरी इन जावा। तो मेमोरी इन जावा तीन तरीके की होती है, हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी एंड मेटा स्पेस। हीप मेमोरी विच इज यूज टू स्टोर ऑब्जेक्ट्स, स्टैक मेमोरी यूज टू मेथड, यूज फॉर मेथड एग्जीक्यूशन एंड लोकल वेरिएबल्स। मेटा स्पेस जेडीके 8+ में होती है विच इज यूज टू स्टोर क्लास मेटा डेटा, मतलब बड़ा डेटा यूज करने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड हीप मेमोरी? ओके, स्टैक और हीप मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है? स्टैक मेमोरी कब यूज करते हैं? जब हमको एक ही मेथड को बार बार कॉल करना है और लोकल वेरिएबल्स
को अगर स्टोर कराना है तो हम स्टैक मेमोरी यूज़ करते हैं कि हमको टेम्पररी कुछ स्टोर कराना है तो आई विल यूज स्टैक, ताकि फिर बाद में मैं उसमें से डिलीट कर सकूँ। हीप मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट और क्लास के लिए हम स्टोर करते हैं। स्टैक का साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू हीप से, हीप का साइज लार्ज होता है। स्टैक फास्टर होता है उसकी स्पीड, हीप की स्पीड स्लोअर होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तो प्रीवियसली सॉल्व कर लिया जहाँ पे मैंने ये सारा चीज़ यूज़ किया है। नाउ मैं आपको एक थ्योरी पार्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन इंटरव्यू। कोडिंग क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, बट अगर आपका असेसमेंट राउंड क्लियर नहीं हुआ जहाँ पे आपको ऐसे थ्योरी पूछी जाती है तो नो नीड कि आप फिर कितना भी वो पढ़ लो, कोई काम नहीं आएगा आपका। ओके, तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेमोरी लीक इन जावा। अ मेमोरी लीक occurs when objects are no longer used but are still referenced, preventing garbage collection. Okay, मेमोरी लीक क्या होता है कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूज पे नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ मेमोरी ले रहा है, ठीक है, कि अभी उसका कोई यूज नहीं है लेकिन उसको बार बार रेफरेंस करके उसको गार्बेज कलेक्ट होने से हम वो प्रिवेंट हो रहा है और कुछ मेमोरी ले रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया है, ठीक है। अब और एक मेन फंक्शन में उसे कॉल किया है कि जब तक ये ट्रू होगा तब तक ही नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाओ लिस्ट में। सी, ये जो ये क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट लिस्ट में ऐड करते जाएगा जबकि प्रीवियसली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का कोई यूज नहीं है, स्टिल ये ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा है तो इससे मेरी मेमोरी मतलब फालतू की ऑक्यूपाई हो रही है, मतलब ओके। तो दिस इज नोन एज मेमोरी लीक, कि बे मतलब का मेमोरी यूज हो रहा है विदाउट नो नीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन इम्प्रूव द जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम। देखो, जावा एप्लीकेशन या फिर जावा कोड की परफॉर्मेंस कैसे वी कैन इम्प्रूव। सबसे पहले हमारा कोड ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, एफिशिएंट एल्गोरिथम यूज करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सॉर्टिंग की अगर बात करी जाए तो हम सॉर्टिंग में किसी ने मुझे सॉर्ट करने बोला तो मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आएंगे सॉर्ट करने के, लाइक हीप सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। लेकिन अगर मुझे अपनी परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के कोई चीज़ को सॉर्ट करना है तो वे सॉर्टिंग आई विल यूज क्विक सॉर्ट, क्योंकि इट इज़ द बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इसको कंसिडर किया जाता है क्विक सॉर्ट को, ठीक है। तो मैं उससे अपनी ऐसे गुड एल्गोरिथम यूज़ करके अपनी कोड को ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ। स्ट्रिंग बिल्डर, अगर मैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन यूज़ ना करने के अलावा अगर मैं स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करूँ तो दिस विल बी ऑल्सो अ गुड फॉर माई कोड। नेक्स्ट वन इज मिनिमाइज ऑब्जेक्ट क्रिएशन। एक ही ऑब्जेक्ट को अगर बार बार मैं यूज़ कर सकूँ तो दिस इज गुड, ताकि मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने से बच जाऊँ। सेकेंड इज क्लोज रिसोर्सेज, इंश्योर स्ट्रीम्स एंड कनेक्शंस आर क्लोज। आफ्टर यूजिंग आपको इंश्योर करना है कि क्लोज कर दिए हम सारे रिसोर्सेज को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कैनर लेते थे, पहले क्या होता था कि हम कुछ भी इनपुट देते थे तो स्कैनर एस सी इजिकल्स टू ऐसे करके लेते थे और एट लास्ट में हम क्या करते थे, एस सी डॉट क्लोज। क्या लिखते थे, एस सी डॉट क्लोज। अगर एस सी डॉट क्लोज नहीं लिया है तब भी स्कैनर क्लास तो क्लोज हो जाती थी, लेकिन फॉर मेकिंग योर कोड गुड एंड लुकिंग इट लाइक कि बहुत अच्छे प्रोग्रामर ने कोड किया है, अगर आप एस सी डॉट क्लोज लगाओगे तो इट विल बी गुड। नेक्स्ट इज enable JVM optimizations. Use appropriate JVM flags. Yeah, you can use these flags in your code. This is an example. See, यहाँ पे मैंने एक रिजल्ट करके बनाया है, एक स्ट्रिंग बनाई है जिसमें क्या हो रहा है कि 1000 तक मेरे पास अलग अलग नई स्ट्रिंग्स क्रिएट होगी, लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग बिल्डर बनाऊंगी तो उसी लिस्ट में मेरा चीज़ें अपेंड होते जाएंगी, अपेंड होती जाएंगी। यहाँ पे मेरे को कोई नीड नहीं है कि मैं हर बार नई स्ट्रिंग बनाऊँ। तो दिस कोड विल कंसिडर्ड एज एन एफिशिएंट कोड एंड दिस इज इनएफिशिएंट कोड। ओके, आई होप सो यू गॉट इट। मैंने यहाँ पे आज हमने 40 क्वेश्चंस कवर कर लिए बेसिक जावा के, और 2 वीडियोस आर लेफ्ट, मीन्स 20, नो नॉट 20, ओनली 10 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। उसके बाद मैं इस पूरा ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।